Ladies and gentlemen, another very common dermatosis among children is atopic dermatitis, which significantly impacts a child's quality of life. Early diagnosis and management are crucial for minimizing symptoms. Our next speaker is a very much beloved and respected member of Derma fraternity. She combines advanced medical knowledge with a compassionate approach to care. She is working as head of department dermatology, Jinnah Hospital, Lahore, and due to her efforts, the department was the first recognized department in Lahore for formal training in pediatric dermatology. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Lameez Mahmood Malik for her talk on atopic dermatitis. बच्चा plus adult dermatologist. The next 5 years, I'm both a pediatric dermatology supervisor and an adult dermatology supervisor. No, I don't know. हाँ ये अच्छा जी ठीक हो गया. 5 साल बाद मैंने डिसाइड करना है कि मैंने किसको रखना है. फिर उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं. ठीक है. अभी तक तो I have the CPSP has given us the कोशिश तो मैडम मैं भी करूँगी. Let's see. तो प्रोफेसर फारिया की मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ. ये मेरी दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, सहेली भी हैं और हमने इकट्ठे ट्रेनिंग की हुई है प्रोफेसर ताहिर सईद हारून साहब के साथ. और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे और आई एम इवन हैप्पियर दैट शी टोल्ड मी टू कट इट शॉर्ट. तो मैंने कहा कि जो मैंने पहली थोड़ी सी स्लाइडें बनाई हैं मैं और कम छोटा करके बताऊँगी क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड बिहाइंड. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस. जैसे डॉक्टर हिरा जस्ट टोल्ड इट इज़ अ वेरी कॉमन डर्मेटोसिस विच वी सी इन चिल्ड्रन. एंड द टॉपिक विच फारिया गेव मी वॉज व्हाट्स ट्रू एंड टेस्टेड एंड व्हाट्स ऑन द होराइजन. सो आई विल बी स्टिकिंग प्राइमरीली टू द थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स. अब हमारा इस आज के इस लेक्चर की ऑब्जेक्टिव ये है कि we will briefly recap how we are treating atopic dermatitis in children today. We will discuss what novel treatments are on the horizon and we will also discuss how our practices are likely to change in the next 5 years. So before we start, let's see this scenario. Okay? A patient, a female patient, XYZ, has atopic dermatitis since infancy, which is controlled on regular emollients and intermittent topical corticosteroids. As she grew older, her atopic dermatitis became increasingly severe, compounded by recurrent skin infections warranting multiple hospital admissions. And she was started on oral methotrexate at the age of 10 years. This worked reasonably well, but caused significant nausea, and she was later on switched to dupilumab with excellent response. However, she developed severe bacterial skin infection and the response became poor even after adding methotrexate 3 months into the therapy. Now she is now 12 years old. My question from you is that we are considering the Janus kinase inhibitor for her, but which one should we choose? You may not answer the question. We'll go on with the, but keep this question in your mind. And we'll come back to it later. We'll park this question and we'll come back to it at the end of the presentation. कि ये सीन है. अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ये पेशेंट जो थी, is she a typical patient of atopic dermatitis that you see? No, she is not an atypical patient. She is so what is the difference between a typical versus an atypical patient of atopic dermatitis? Now as we see that in an atypical patient the disease is more severe. The patient journey is more complex, as in our case. There are frequent hospital admissions due to either disease flare or due to some complications of the disease. Then multiple food and respiratory allergies can also be a part of the scenario. There may be side effects of systemic therapy and there may be a relapse after an initial good response to a very good drug like a biologic. So these are the atypical patients that we deal with. And it's for these patients that we need some new things which are not already in our armamentarium. So let's see that is there hope for such patients? Obviously, hope के बगैर तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है ना. There should be a hope for everyone. So given the promising pipeline of novel systemic therapies, we are hopeful that we will finally find a treatment that induces adequate disease control.
But first, let's take a stock of what we already have in our armamentarium, and then we will determine where the future is going to take us. So, what's true and tested? ये true and tested जो है ना, वो जो पुरानी दवाइयाँ हैं, जो older, which are known and which are tested. अच्छा, ये मैं एक कंपैरिजन का करूँगी, शायद कुछ लोग इसके साथ एग्री करें कि ये जो नई और पुरानी दवाइयाँ, जो न्यू नॉवल ट्रीटमेंट्स हैं, उनको और ट्रू एंड टेस्टेड ट्रीटमेंट का कंपैरिजन, ये किसी ने एक दफ़ा मैंने कहीं किसी ने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे बीवी और महबूबा का मुआवजना होता है कि महबूबा जो होती है ना, वो ग्लैमरस, शाइनी, प्रॉमिसिंग, नए नए सब्ज बाग दिखाने वाली, और बीवी जो है वो सीधी सादी, टाइम टेस्टेड जो है, काम वक्त पे काम आने वाली. तो प्रोबेबली जो ट्रू एंड टेस्टेड हैं, जो ज़्यादा ओल्डर ट्रीटमेंट्स, वो हमारी डर्मेटोलॉजी के दवाइयों की बीवियाँ हैं, और वो दूसरी जो है वो द अदर ग्रुप. अच्छा, ट्रू एंड टेस्टेड में हमारे पास क्या क्या है जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं? जी सर, महंगी है सर. सर, महबूबाएँ भी महंगी होती हैं सुना. हाँ जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? हम भी सर, ये देख लेना, नॉवल ट्रीटमेंट्स एंड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड. ये खुद आएंगे इसका पावरमेंट अब ज़्यादा हो गई है जी. अब आपको महबूबा की बजाय महबूब का भी टॉपिक सर, वो थोड़े से कुछ मौलवी हजरात नाराज हो जाएंगे. महबूबा तक तो शायद वो मान जाए, उससे दूसरी बात जो है ना हम नहीं करते. फतवा ऐसे ही ना लगवा दें आप बुढ़ापे में मुझ पर बाहर आ लेनी है. अच्छा, ट्रू एंड टेस्टेड जो टॉपिकल्स हैं, हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं. एमोलिएंट्स हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड्स हैं, और टॉपिकल कैल्शियम इनहिबिटर्स हैं. ये हमारे ट्रू एंड टेस्टेड टॉपिकल्स हैं. एमोलिएंट्स जो हैं मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट हैं. दे विल ऑलवेज वर एंड ऑलवेज रिमेन द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट. और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन एन एटोपिक इवन व्हेन एटोपिक एक्जिमा इज क्लियर. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब चूंकि टाइम थोड़ा है तो हम विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी. एमोलिएंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक पूरा टॉपिक है. सिमिलरली ट्रू एंड टेस्टेड में दूसरी जो हमारा मेन चीज़ है, दैट इज द टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. Obviously, they are the first line treatments for flare-ups. They decrease the inflammatory and immune response, and steroid potencies ranging from very low to ultra high are tailored according to the patient's need and the response. Then the topical calcineurin inhibitors, जिसके बारे में हम सारे जानते हैं, tacrolimus, pimecrolimus, they are steroid sparing immunomodulator, और इनकी जो एज ये है कि they can be used safely in children, especially on the face, neck and groin region, और इसके short, long term and maintenance therapy तीनों में ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Then we should not forget phototherapy, which we are tending to forget. शायद वो इतनी ग्लैमरस नहीं रही, इसलिए सस्ती है या जो भी है इसकी वजह के जो है phototherapy is a forgotten flower of dermatology, I would say. तो it reduces cutaneous inflammation as we all know. इसमें narrow band UVB भी है effective, और short courses of UVA alone and with oral Soral and can be used to treat flare-ups. और home based phototherapy जो है वो अब बाहर तो बहुत commonly इस्तेमाल हो रही है, तो hospital visits को भी अब उसके लिए वो help करती है कि hospital visits भी कम है. अब आ जाते हैं हम, topical की बात हो गई, topical tried true and tested. What are the systemic true and tested? Systemic true and tested क्या? मैंने एक ये बनाया, they are these 4 oldies. Sorry, I went back. ऐसे थोड़ा, हाँ. Topical 4 oldies मैंने इनका नाम रखा है. एक methotrexate, azathioprine, cyclosporine, mycophenolate mofetil. अब we all know about them. We've all been using them. किसी सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मिथोट्रेक्सेट हमने इस्तेमाल की है, उसके बाद एजाथायोप्रिन इस्तेमाल की गई है, साइक्लोस्पोरिन एंड माइक्रोफिनोलेट मॉफेटिल अगेन.
अच्छा इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर दवाई के साइड, अच्छा सिर्फ जो इसमें चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो एडल्ट की डोज है और पीडियाट्रिक डोज है वो थोड़ी सी फ़र्क है, अदरवाइज साइड इफ़ेक्ट्स भी तकरीबन यही हैं, और बाकी ये चीज़ें जो हैं ये वी आर ऑल एज़ाथाइप्रिन के एडल्ट की और ये पीडियाट्रिक की डोज तकरीबन बराबर है। माइक्रोफिनोलेट 30 to 40 मिलीग्राम है रादर देन 50, और साइक्लोस्पोरिन एंड मीथोट्रेक्सेट की 0.3 to 0.4 मिलीग्राम पर वीक है। अब होराइजन पर क्या है, आगे क्या है? यहाँ तक तो हम थे ना, जो हम सारे आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, करते आए हैं, और जो हमारा पुराना पेशेंट था जिसकी जो XYZ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि उसमें भी वी स्टार्टेड विद स्टीरॉइड्स, टॉपिकल स्टीरॉइड्स, एंड देन वी वेंट ऑन टू जो है methotrexate, एंड आफ्टर दैट देन सम न्यू थिंग वाज एडेड। अब इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम आगे चलते हैं। सो व्हाट्स न्यू ऑन द होराइजन, ठीक है? होराइजन में क्या क्या है हमारे पास? दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो टॉपिकल्स हैं, दूसरी सिस्टेमिक्स हैं। इनके नाम हमें आने चाहिए और इनका इंतज़ार हम कर रहे हैं, ये जब आएंगे तो देन वील सी कि हमारा अपना जब इनके साथ एक्सपीरियंस डेवलप होगा। तो जो टॉपिकल जो न्यू नॉवल ट्रीटमेंट्स हैं ना, उसमें 3 ग्रुप्स हैं। एक है PDE4 प्रोस्टाग्लैंडिन E4 इनहिबिटर्स, टॉपिकल एराइल कार्बन्स एंड टॉपिकल जैक इनहिबिटर्स। क्रिसाबुरोल इसलिए जो है वो अहमियत का हामिल है कि इट इज़ FDA अप्रूव्ड 2% क्रिसाबुरोल ऑयल। एरल कायरोमेटेपिनारोफ भी फेज 3 ट्रायल में है। टॉपिकल जैक इनहिबिटर्स में रुक्सोलिटिनब जो है दैट इज़ आल्सो अप्रूव्ड फॉर टॉपिकल यूज इन चिल्ड्रन। ये बाकी के जो हैं दे आर इन द पाइपलाइन, तो इनके हमें नाम पता होने चाहिए। थोड़ी सी बात क्रिसाबुरोल की कर लेते हैं। It was FDA approved in 2016. It's useful in mild to moderate atopic dermatitis in patients 3 months and older. So ये इसका ये है कि ये बहुत छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, और लेकिन it is recommended to be used only if there is less than 40% body surface area involved. As side effects obviously किसी भी topical treatment के साथ burning और stinging का side effect रहता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं बाकी के जो हैं वो obviously they are not FDA approved yet, so we are not talking about them, but we should know कि ये 3 groups हैं, PDE4, aryl carbons and topical JAK inhibitors। अब आ गए सिस्टेमिक नॉवल ट्रीटमेंट्स। सिस्टेमिक नॉवल ट्रीटमेंट्स में हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, टाइम टेस्टेड है, FDA अप्रूव्ड है, डुपिमुलैब, और ओरल जैक इनहिबिटर्स। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, डुपिमुलैब डुपिक्सेंट के नाम से है। इट इज़ द फर्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट अप्रूव्ड बाय द FDA फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस। अनरजिस्टर्ड है अभी पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है आप लोगों में से किसी का है इसका एक्सपीरियंस यूज़ करने का। कुछ लोग दुबई से मंगवा के मेरा ख्याल है इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है आपका कोई पेशेंट था डॉक्टर नादिया, आपने बताया था शायद कि दुबई से उसने। सर आप लोगों में से किसी का है इसका एक्सपीरियंस यूज़ करने का? डॉक्टर फरजाना का? डॉक्टर हारून आपका डुपिमुलैब का कोई एक्सपीरियंस है इस्तेमाल का? इट्स अ गुड ड्रग ये जी। जो मेरा ये ख्याल है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब एक्यूट फ्लेयर आता है तो हमारे पास मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती है, और स्टीरॉयड। और आजकल जैसे मैं एक AI की बात कर रहे थे, तो उसमें अब हर बंदा जब आता है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है स्टीरॉयड तो नहीं दे रहे, गिव समथिंग एल्स। तो उसके लिए हमारे पास जो एटोपिक में पहले जो एक्यूट फ्लेयर को मैनेज करने के लिए एक ही ऑप्शन था, एंड दैट वाज स्टीरॉयड। अब वो पेशेंट उसके लिए राज़ी नहीं, तो उसके लिए पेशेंट मोस्टली जो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो पहले रिसर्च करके आते हैं कि आप हमें कौन सी दवाई देंगे स्टीरॉयड के अलावा। और उनका होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मेरे मुंह से सुनना चाह रहे होते हैं कि मैं पहले क्या कहता हूँ, क्या मैं पहले बायोलॉजिक कहता हूँ या पहले जैक इनहिबिटर कहता हूँ। और जैक में भी उनके पास ये आंसर होता है कि
सबसे अच्छा जैक इनहिबिटर जो अवेलेबल है एटॉपिक में कौन सा बेस्ट है और सबसे रैपिड रिस्पांस किसका है? डॉक्टर अरुण ने जिक्र किया स्टीरॉइड्स का, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स का। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स को मैंने अपने उन 4 ओल्डीज में शामिल नहीं किया, बट वी हैव ऑल बीन यूजिंग इट। द गाइडलाइंस डू नॉट वारंट द यूज ऑफ systemic steroids for even for acute flare, but they have been used and they will be used because sometimes they are only जिसको कहते हैं ना things that the go-to drugs. Topic oral, especially children की हम क्योंकि बात कर रहे थे, that's why I did not put systemic corticosteroids in one of the treatment options of older drugs. तो next ये Dupixent की आपको तस्वीर है, ये 200 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम दोनों की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसकी डोजिंग ये है कि ये चिल्ड्रन और टीन्स में 6 to 17 ईयर्स ऑफ एज के लिए जो है वो इसकी, अगर उसका वेट 132 पाउंड या मोर है तो 600 मिलीग्राम और इंजेक्शन है, और फिर उसके बाद 300 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स। इसी तरह वेट अगर कम है तो 400 और फिर 200 है, और अगर वेट 33 पाउंड्स से लेकर 66 पाउंड तक है तो 33 पाउंड्स और 66 के दरमियान है तो 600 मिलीग्राम और फिर 300 मिलीग्राम एवरी 2 वीक। ये देख लें कि वेट कम होने के बावजूद उसकी डोज ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों में कई दफ़ा डोज आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली ये चिल्ड्रन 6 months to 5 years ऑफ एज, तो वो उसमें भी वेट के हिसाब से अगर 66 पाउंड तक है तो 300 मिलीग्राम, और अगर उससे कम है तो 200 मिलीग्राम एवरी 4 वीक्स। अच्छा जी, फिर ये दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट्स अदर दैन डुपिमुलाब, दे इंक्लूड ट्रेलोकिनोमैब, लेब्रिकिजुमैब एंड निमोजिलमैब। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये थी कि इन सब में से, इनमें से जो ये है ट्रेलोकिनोमैब, ये अप्रूव हो चुकी हुई है। ये जो है लेब्रिकिजुमैब, ये फेज 3 ट्रायल में है। ये IL-4 IL-13 के अगेंस्ट हैं, और ये जो है ये भी फेज 1-2 में। नीमोलिजुमैब जो है इट हैज़ आल्सो बीन अप्रूव, बट इट इज़ अगेंस्ट IL-31। ओमालिजुमैब जो कि हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अर्टिकेरिया के लिए और एलर्जिक एस्मा के लिए, दैट हैज़ आल्सो बीन ट्राइड, लेकिन ओनली 20% अचीव्ड 50% ऑफ ग्रेटर रिडक्शन। उसके अलावा उस्टिकिनुमैब हैज़ आल्सो शोन एफिकेसी इन अ फ्यू केसेस, लेकिन मेनली डुपिमुलाब एंड देन these 3। अच्छा जी, एडवर्स इफेक्ट्स, जो हमें पता है कि बायोलॉजिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, they should be taken in account, which include neuropharyngitis, multiple skin infections and systemic infections, as well as headache and other side effects. Now we come to lastly but not the least, the JAK inhibitors. The JAK inhibitors, as we all know, are the talk of the town at the moment, and we should be well aware of what they are doing and what ये टाइम की कमी की वजह से ये मैंने इस पाथवे को भी नहीं टच करना। सिर्फ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दे कंपैरेटिवली बाइंड टू ATP बाइंडिंग साइट्स एंड सप्रेस देयर एंजाइम एक्टिविटी एंड साइटोकाइन एक्शन। हमें पता है कि ये TH2 जो है रिस्पॉन्स है एटोपिक डर्मेटाइटिस में, और उसके जो साइटोकाइंस हैं, JAK-STAT डिपेंडेंट IL-14 and IL-13 signaling participates in the dysregulation of keratinocyte function in atopic dermatitis, leading to the downregulation of certain components in the skin barrier. And these JAK-STATs regulate the activity of peripheral nerves responsible, also peripheral nerves responsible for pruritus. इसके ऊपर भी इनका इफेक्ट है। अच्छा, oral JAK inhibitors, topical JAK inhibitors की हमने पहले बात की थी। अब oral JAK inhibitors, oral JAK inhibitors जो है ना, ये फर्स्ट अवेलेबल oral targeted treatments थी for atopic dermatitis, और एक मेटा एनालिसिस किया गया जिसमें कुछ बहुत सारे पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एटोपिक 15 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का, जिसने ये शो किया, ये 4 ओरल JAK इनहिबिटर्स थे, एब्रोसिटिनिब, बैरेसिटिनिब, गुसासिटिनिब एंड उपाडेसिटिनिब। इनमें से जो है ना पीडियाट्रिक यूज़ के लिए उपाडेसिटिनिब ही अवेलेबल है और उपाडेसिटिनिब ही अप्रूव है। बाकी जो है ना वो एडल्ट्स में तो दे आर अप्रूव,
बट इन द एडोलेसेंट पॉपुलेशन जिसमें 12 से लेकर 17 ईयर्स के पेशेंट्स हैं, दे आर स्टिल, उनके ट्रायल्स दे आर स्टिल गोइंग ऑन विद जेड मोनो और जेड ट्रायल्स जो हैं दे आर स्टिल गोइंग ऑन. अच्छा, जैक इनहिबिटर्स वर सुपीरियर टू प्लेसिबो इन अचीविंग ईजी 75. जिस तरह पासी 75 होता है कि 75% ऑफ द बेसलाइन स्कोर उसकी इम्प्रूवमेंट, इसी तरह ईजी 75 भी है. और इसमें जो ये जो हैं inhibitors, they were superior to placebo. And further studies, however, are needed in pediatric population. But the results suggest a role for oral JAK inhibitors in patients with atopic dermatitis which are refractory to dupilumab. अब वो patient जो था, she showed a good initial response to dupilumab, and then there was now loss of response. So she became refractory to the biological agents. तो उसके लिए अब हमने what are the choices? अब आप लोग सोचेंगे हमारे पास अब क्या क्या choices रह गए. बस खत्म करने लगी. जी जी, मैं भी बड़ी देर से खंगूरे मार रही हूँ. अच्छा, upadacitinib जिसका मैंने बताया, ये एक JAK1 selective inhibitor है which is FDA approved for refractory moderate to severe atopic dermatitis in patients more than 12 years. तो ये हमारे जो pediatric population के लिए ये FDA approved है. इसका फेज 3 हेड टू हेड ट्रायल्स हो रहे हैं कंपेयरिंग upadacitinib टू dupilumab, और इसने ये शो किया कि इट शोज स्लाइटली बेटर इंप्रूवमेंट इन ईजी 75 स्कोर इन दिस ग्रुप रादर एज वर्सेस dupilumab, जिसमें 61%, इसमें 71%. अच्छा, उसके बाद abrocitinib के बारे में बहुत आजकल ह्यू एंड क्राई है, इट इज़ अबाउट टू कम टू पाकिस्तान. तो abrocitinib जो है ना FDA अप्रूव्ड है for refractory moderate to severe atopic dermatitis in adults but not in adolescents yet. इसके trials चल रहे हैं but adolescents के लिए ये अभी नहीं approved. इसमें 2 doses हैं, 200 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम, और उन दोनों का आपस में comparison है. Obviously 200 के slightly better results than 100, but obviously it has some more side effects. और इसके phase 3 trials हो रहे हैं. और oral JAK inhibitors further expand options for those patients who are needle averse, और वो क्योंकि ये oral इसके लिए UTI kit can be taken orally, and or they are unresponsive to other therapies. Pruritus seems to respond quickly to JAK inhibitors. जैसे इन्होंने कहा ना कि पेशेंट आके पूछता कि कौन सा JAK inhibitors मुझे फौरी तौर पे इफेक्ट करेगा या कौन सा JAK inhibitor ज़्यादा अच्छा है. तो JAK inhibitors ये है कि ये एक या 2 डोजेस के बाद ही आपको मतलब विदिन वीक रिस्पॉन्स आ जाता है. 1-2 डोजेस के बाद तो नहीं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद रिस्पॉन्स आ जाता है. कुछ जो हैं हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स और न्यू ड्रग्स, उनमें रिस्पॉन्स जो है वो ज़रा देर से आता है. तो इसकी ये है कि दैट अगेन इंश्योर्स द पेशेंट कंप्लायंस, कि आपका रिजल्ट आ रहा है तो पेशेंट कंप्लाई भी कर रहा है. अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली इसके साथ इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, मैलिग्नेंसी, माइलोसप्रेशन वगैरह, और लैब मॉनिटरिंग ऑब्वियसली ज़रूरी है. A few just before I leave a word about apremilast as well. It is an oral phosphodiesterase E4 inhibitor, वो भी FDA approved है for atopic dermatitis. फिर और कुछ एक्सपेरिमेंटल एजेंट्स हैं जिनका कोई ख़ास अभी ऐसा बोल नहीं. एक माइक्रोबियल है कि हमें पता है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में कुटेनियस डिस्बायोसिस हो रहा होता है, तो उसके लिए एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है ओमेगानॉन, उसको ट्राई किया गया है. फिर टारगेटेड माइक्रोबायोम ट्रांसप्लांट लोशन है, और मल्टीपल ओरल सप्लीमेंट्स है विद प्रीबायोटिक्स विच इज़ नेचुरली रिच इन ह्यूमन मिल्क, वेजिटेबल फूड, प्रोबायोटिक्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हैं. अब एट द एंड ऑफ दिस वेयर शुड वी गो, फाइंडिंग द वे. तो कैसे हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है मरीज़ को. जी, सवाल वही आ गया. सवाल तो वही जी, दोनों. डॉक्टर नादिया का ख्याल है दोनों. You are जी, एक बस आखिरी बस ये देखिए गाइडलाइंस बता दें आपको कि जो गाइडलाइंस क्या कहती हैं, फिर हम आगे चलते हैं. गाइडलाइंस ये हैं कि जब भी हमें कहीं फंस जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमें कोई रहनुमाई के लिए कोई गाइडलाइन चाहिए होती है. तो ये बहुत सारी गाइडलाइंस है. ये यूरो लिविंग गाइडलाइंस भी कहते हैं, यूरो गाइडलाइंस हैं. इसमें सिर्फ ये बात है कि जैसे हमने पहले बात कर दी कि बेसलाइन थेरेपी क्या है, एमोलियंट्स हैं. अच्छा, ये जो ग्रीन वाले हैं दीज आर हाईली रिकमेंडेड. डार्क ग्रीन वाले, लाइट ग्रीन वाले जो है ना, दे आर नॉट सो हाईली रिकमेंडेड. ठीक है, तो
तो जो डार्क ग्रीन है दे शो दैट बेसलाइन थेरेपीज इमोलिएंट्स, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. ठीक है, पेरेंट्स एंड द केयरर्स हैव टू बी एजुकेटेड. माइल्ड में अब ये चीज़ें जो हैं ये इवन व्हेन द पेशेंट डज नॉट हैव एक्टिव एक्जिमा दीज शुड बी फॉलोड इवन देन. माइल्ड में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉपिकल कैल्शियम इनहिबिटर्स एंड बेड ट्रैप्स. एक्यूट में. मॉडरेट में TCS, TCIs, नैरो बैंड UVB एंड मीडियम डोज UA1 एंड साइकोसोमैटिक काउंसलिंग. और सिवियर में ये एडोलेसेंट जो एडल्ट्स का है वो थोड़ा सा फ़र्क है. इसमें साइक्लोस्पोरिन A, डुपिमुलैब एंड उपा डिसिटनिब, मुझको से याद होता है जी, इसका नाम मैंने उपा याद रखा, डुपी एंड उपा. ठीक है जी. सो इन समरी एक हीट्रोजेनस डिसऑर्डर है. इसके लिए बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे साइटोकाइन्स इंटरप्ले में है, तो इनके खिलाफ मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे जो नए नए हमारे आर्मामेंटेरियम का हिस्सा बनते रहेंगे. और टॉपिकल क्रिसाबरोल इज़ अ न्यू FDA अप्रूव्ड एजेंट. टॉपिकल रुक्सोलिटिनिब इज़ अ न्यू FDA अप्रूव्ड एजेंट. ओरल उपाडिसिटिनिब, ये मैं बच्चों में बता रही हूँ. एंड इंजेक्टेबल डुपिमुलैब. ये 4 चीज़ें हैं जो नई होराइजन पर हमारे पास मौजूद हैं और वी आर ईगरली वेटिंग कि हमारे जब भी कभी हमारे मौका मिले यहाँ पर आएँ और हमारे पेशेंट्स इनको अफोर्ड कर सकें और हम यूज़ कर सकें तो हम करेंगे. और हेड टू हेड ट्रायल्स हो रहे हैं. पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक पेशेंट में हेड टू हेड ट्रायल्स चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या करें इनका. टेक होम मैसेज ये है कि लॉन्ग टर्म बीमारी है तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल चाहिए. तो 2 तरह का कंट्रोल है. ये डॉक्टर नादिया की स्लाइड है. आई हैव यूज्ड दिस विद हर परमिशन. ही यूज्ड इट इन एन लेक्चर एंड आई रियली लाइक दिस इन द एंड. सो मैंने कहा कि आई विल लीव विद दिस कि 2 तरह की ट्रीटमेंट्स है. एक रीएक्टिव ट्रीटमेंट है, एक प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट है. रीएक्टिव ट्रीटमेंट ये है, ये सिर्फ इंटरमिटेंट फ्लेयर्स को प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स, पोटेंट टॉपिकल स्टीरॉइड्स एंड प्रेडिसोन. ये किस तरह की ट्रीटमेंट है? ये रोलर कोस्टर की तरह की ट्रीटमेंट है. फ्लेयर आया तो हमने ट्रीटमेंट बढ़ा दी, फ्लेयर चला गया तो हमने बंद कर दी. ये जबकि जो प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट है वो ये कहती है कि प्रैक्टिस डेली स्किन केयर, यूज एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन, रिकग्नाइज एंड अवॉइड ट्रिगर्स. ये प्राइमरी प्रिवेंशन पे जा रही है बात कि आप उसको होने ही ना दें. ये जो है ये मेंटेन करेगी कंट्रोल. थैंक यू वेरी मच.